Students, welcome to today's lecture. So in today's lecture, we are going to see the application of Bernoulli's theorem. So in our previous lectures, we had seen what are the different types of forces acting on the fluid in motion. Okay. After that, we had seen the different types of equation, that is Reynolds equation, Navier-Stokes equation, Bernoulli's Euler's equation. Then we had derived the Euler's equation, and we had seen the description mathematical form of Navier-Stokes equation. After that, by integrating the Euler's equation of motion, we had derived the Bernoulli's equation. Okay, and from Bernoulli's equation, we had seen the statement for Bernoulli's theorem. Okay, so the Bernoulli's theorem states in an incompressible flow of an ideal fluid, in an incompressible steady flow of an ideal fluid, the total energy head always remains constant. Okay, so we had seen all this. After that, we had also solved the problems on Bernoulli's theorem. Okay, now in today's lecture, we are going to see the application of Bernoulli's theorem. Okay, what are the different devices which are working based on Bernoulli's theorem? Okay, so the Bernoulli's theorem can be used, or it can be applied to any incompressible fluid flow. Okay, because in the statement of theorem itself, we are saying in a steady flow of an ideal incompressible fluid. Okay, so in this type of fluid flow, basically for the measurement purpose, some devices are designed. Okay, जैसे आपको discharge calculate करना है, what is the amount of water flowing per unit time. So we know volume per unit time is discharge. Okay, so आपको discharge measure करना है. So discharge measure करने के लिए there are some readily available devices that are venturimeter, orifice meter, pitot tube, static pitot tube, and so on. Okay, and all these devices are working on Bernoulli's principle. Okay, so today we will going to see one by one all of them. So first device which we are going to see, that is venturimeter. So basically venturimeter, it is a device which is used for measurement of rate of flow of a fluid. Okay, that means simply discharge. Okay, whatever the volume of fluid flowing through the given pipe per unit time. Okay, अभी कन्वेंशनल मेथड ऑलरेडी वी नो. कन्वेंशनल मेथड में हम क्या करते हैं, आपको वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकालना है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम निकालना है. ओके, तो आप प्रैक्टिकल में क्या करते हो, आप कोई भी नोन टैंक लेते हो. ओके, वो टैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया आपको पता होता है, और आप क्या करते हो, कोई भी पर्टिकुलर हाइट, सपोज 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर राइज के लिए कितना टाइम लगता है, तो आप व्हाट्सएप मेजर करते हो. तो क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय दिस हाइट h. ओके, मल्टीप्लाई बाय हाइट h, ये आपको क्या मिलता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड. एंड दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर कलेक्टेड अपॉन टाइम. ओके, दैट मीन्स वॉल्यूम अपॉन टाइम. दिस वॉल्यूम पर यूनिट टाइम is nothing but discharge. Okay, so this is a conventional method which is basically used for measuring the discharge. Okay, but ये मेथड में बहुत से ह्यूमन एरर इन्वॉल्व होते हैं. आप स्टॉप वॉच लेट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर कभी कभी 5 सेंटीमीटर के बजाय 5.2 5.3 सेंटीमीटर पे आप स्टॉप वॉच स्टॉप करोगे. So number of human errors are involved. Okay, so in order to overcome, there are some standard devices, for example venturimeter or orifice meter. So you can directly install these devices on the pipe, and with the help of simply measuring the readings, you can came to know what is the discharge flowing through the pipe. Okay, so you can see this is a schematic diagram of venturimeter. So venturimeter basically consists of three main parts, that is converging part, then throat, and diverging part. In addition to that, there is additional inlet section. Okay, this is inlet section, this is inlet section, inlet to venturimeter. Okay, and this section is outlet to venturimeter. Okay, this is outlet. Okay, so you can see this is the actual 3D view of, or this is a photographic view of actual venturi meter. Okay, which can be installed on the pipe. So you can see here there are 5 sections: inlet section,
then the cross section area reduces. So this section is called as converging section. Then again there is a constant cross section area. There is particular region of the pipe where area is minimum and that area is constant, that is called as throat. Then this area gradually increases. यहाँ पे suddenly reduce हो रहा था, यहाँ पे gradually increase हो रहा है. Okay, slowly it is increasing. So this part is called as diverging section. And last part is this part. So this part is nothing but this is outlet section. Okay. Now one by one we will see what are the constructional features of inlet construction, converging part and so on. So basically inlet section, this is a section of constant cross section area. You can see in this case the area of the pipe, okay, the diameter of the pipe is capital D, and this area should be equals to area of the pipe where we are supposed to connect the venturimeter. Okay, जहाँ पे आपको वेंचुरीमीटर कनेक्ट करना है, तो वो पाइप का डायमीटर और आपके वेंचुरी के इनलेट का डायमीटर, दिस टू डायमीटर शुड बी सेम. Okay, so the first section is inlet section. So in the inlet section, one pressure tapping is provided. Okay, this pressure tapping is provided at the inlet section, and at the inlet section you can connect one piezometer. Okay, आप यहाँ पे piezometer connect कर सकते हो या फिर YouTube manometer connect कर सकते हो. Okay, so one pressure tapping is provided at the inlet section for pressure measuring device. Okay, after that, after inlet section there is a region of reducing cross section area. You can see this is a region of reducing cross section area. Okay, so this part is called as converging part or converging section. And remember the angle of convergence. In this converging section, the angle of convergence, we will say any angle theta. Okay, so this range is between 90 degree to 21 degree. Okay, 19 degree to 21 degree, and standard value of this angle of convergence is actually 21 degree. Okay, so with the angle of 21 degree, the cross section area of this pipe reduces. Okay, after that, next is throat. Okay, so throat, you can see this is a throat section. So again, this throat section, it is a section of the pipe of constant diameter or constant cross section area. Okay, so its diameter D is constant for this section throat. Okay, and here one pressure tapping is also provided. Okay, so again you can connect one piezometer, or you can connect the differential YouTube manometer or simply YouTube manometer at throat. Okay, or at the pressure tapping provided at the throat. Okay, now construction wise, the relationship between capital D and small d is the throat diameter is actually half of the diameter of the pipe. Okay, that means आपने 10 mm diameter का पाइप लिया है, तो बेसिकली थ्रोट का डायमीटर 10/2 5 mm रहता है. या फिर आपने 5 सेंटीमीटर डायमीटर का इनलेट पाइप लिया है जहाँ पे आपको इंचीमीटर कनेक्ट करना है, तो बेसिकली आपका जो थ्रोट का डायमीटर रहेगा वो 2.5 सेंटीमीटर रहेगा. इट इज एक्जैक्टली हाफ ऑफ whatever the diameter of pipe at inlet. Okay, after that there is a next section. So that section is nothing but diverging section or diverging cone or diverging part. So in diverging cone, the cross section area of the pipe gradually increases. Okay, so it is increasing slowly, and angle of divergence, okay, we will call this as alpha. So this alpha is simply 5 to 6 degree, or generally taken as 6 degree. Okay, so in the converging section the angle of convergence was greater. So basically you can see the length of converging part is less. Okay, this length is less, and in the diverging section the angle of divergence is 6 degree. So basically length of diverging section is more. Okay, so here there is a sudden reduction in cross section area, and here there is a gradual increase in cross section area. Okay, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज होगा. ओके, आफ्टर दैट फिफ्थ सेक्शन, it is nothing but outlet section. So outlet section is again, it is a section of constant cross section area. Okay, and its diameter D is equal to diameter of the pipe where outlet is connected. Okay, basically वेंचुरीमीटर जो होता है वो इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप को कनेक्ट किया जाता है. ओके, सो इनलेट पाइप का और आउटलेट पाइप का डायमीटर सेम रहता है, एंड
इनलेट सेक्शन और आउटलेट सेक्शन का भी डायमीटर सेम रहता है. ओके, so again it is a cross region of constant cross section area of diameter capital D, and that capital D equals to whatever the diameter of pipe. Okay, now we will see the working principle of venturimeter. Okay, how the venturimeter actually works. Okay, now what happens when the pipe, suppose the inlet velocity of the pipe is the cross section area at inlet is A1, its velocity will be V1. Okay, and its pressure at inlet, we will say the pressure at inlet is P1. Okay, now this pressure at inlet P1, it can be measured with piezometers which is connected. So inlet pressure जो भी होगा वो आप directly measure कर सकते हो. So that is P1 by gamma or P1 by rho g. Okay, P1 by rho g, this is the pressure at inlet. Okay, and at that point when pressure is P1, the velocity of flow is V1 and cross section area is A1. Now what happens in the converging section, this area reduces. Okay, so you can see here the cross section area is continuously reducing. So when the cross section area is reducing, we know the pressure P decreases. Okay, and velocity V increases. Okay, so this phenomena will continue in the converging section, and at section throat. Okay, or at the throat, you will find the velocity will be V2 and pressure will be P2. Okay, now remember, by Bernoulli's theorem we know Z1 plus P1 by rho g. Okay, pressure at inlet P1 by rho g plus V1 square by 2g. Okay, V1 square by 2g. ये हमारा total energy at inlet था. Okay, so this should be equals to whatever the total energy at throat. So total energy at throat will be Z2 plus P2 by rho g plus V2 square by 2g plus whatever the velocity at throat is V2, so V2 square by 2g. Okay, now we know हमने सेंटर लाइन ऑफ वेंचुरीमीटर को डेटा अज्यूम किया. So Z1 will be 0 and Z2 is also 0. Okay, it is a horizontal venturimeter, so Z1 and Z2 are same. Okay, और बेसिकली जब एरिया रिड्यूस हो रहा है तो प्रेशर रिड्यूस हो रहा है. Okay, sorry, when the cross section area will reduce, okay, so the pressure will decrease. Okay, so basically P1, it was greater than P2. Okay, now in order to balance the Bernoulli's theorem, basically velocity will increase, so velocity V1 will be less than V2. Okay, or V2 will be greater than V1. So यहाँ पे V2 velocity सबसे ज़्यादा रहेंगी और pressure P1 सबसे कम रहेगा. Okay, so this pressure you can measure with the help of piezometers provided. Okay, so it is P2 by rho g. Okay, so P2 by rho g, this you can measure whatever the pressure at throat. Okay, so basically आपको क्या करना है, वेंचुरीमीटर पे जब आपको मेजरमेंट करना है तो आपको P1 by rho g और P2 by rho g, ओके, जो प्रेशर हेड है P1 by rho g एंड P2 by rho g ये मेजर करना है. ओके, और दिस P1 by rho g माइनस P2 by rho g, ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं वेंचुरी हेड. ओके, सो ये वेंचुरी हेड आपको मेजर करना है HV. सो HV इज नथिंग बट P1 by rho g माइनस P2 by rho g. ओके, जो आपके वेंचुरी मीटर का या फिर पीजोमीटर का वेंचुरीमीटर के पीजोमीटर का जो भी इनलेट का प्रेशर हेड है वो मेजर करना है, थ्रोट का प्रेशर हेड है ये मेजर करना है, और इन दोनों का डिफरेंस लेना है. ओके, सपोज इनलेट पे है 20 सेंटीमीटर और थ्रोट पे 5 सेंटीमीटर, सो 20 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर. ओके, मतलब 15 सेंटीमीटर आपको मेजर करना है. सो दिस 15 सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज वेंचुरी हेड डिनोटेड बाय H suffix V. ओके, और उसके बाद में वी आर गोइंग टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर वेंचुरीमीटर. सो वेंचुरीमीटर के फॉर्मूले में आपको HV का वैल्यू पुट करना है. So directly you will came to know the discharge. Okay, so we will see the expression for the discharge or rate of flow through venturimeter. Okay,
वेंचुरोमीटर से जो भी डिस्चार्ज होता है या रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर होता है उसका फॉर्मूला क्या है. सो एज शोन इन द डायग्राम, consider a horizontal venturimeter or consider venturimeter fitted on a horizontal pipe. Okay, consider water is flowing. So as shown in the figure, okay, it depends on आपके जो सेटअप में कौन सा अवेबिलिटी है मैनोमीटर का. Similarly, D2, P2, V2, A2, these are the corresponding diameter, pressure, velocity and area at throat. It is at section 2. Okay, now we will apply the Bernoulli's theorem between section 1 and 2. So we know P1 by rho g plus V1 square by 2g plus Z1 equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g plus Z2. This is nothing but Bernoulli's theorem. Okay, total energy head at inlet, okay, that equals to total energy head at throat. Okay, after that, now as our pipe is horizontal pipe, so horizontal pipe है तो हम सेंटर लाइन ऑफ वेंचुरीमीटर को डेटा मज्यूम कर लेंगे. तो बेसिकली सेंटर लाइन का डिस्टेंस सेंटर लाइन से सेक्शन 1 के लिए कितना रहेगा, 0. ओके, सिमिलरली सेंटर लाइन का डिस्टेंस सेंटर लाइन से सेक्शन 2 के लिए कितना रहेगा, 0. ओके, so basically here Z1 and Z2 are equal. Okay, so Z1 and Z2 we will cancel from both sides. Okay, so our remaining equation is P1 by rho j plus V1 square by 2g, that equals to P2 by rho g plus V2 square by 2g. Now we will do one thing, P2 by rho g को हम राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे. So we will have P1 minus P2 upon rho g, और ये V1 square by 2g को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे. So we will have V2 square by 2g minus V1 square by 2g. V1 square by 2g राइट में आकर नेगेटिव हो जाएगा एंड P2 by rho g लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा. So P1 minus P2 by rho g that equals to V2 square by 2g minus V1 square by 2g. Okay, now we know we had already seen this P1 by rho g minus P2 by rho g is nothing but H or HV. Okay, so this P1 by rho g minus P2 by rho g is nothing but difference of pressure head at section 1 and 2. Okay, and that equals to H. This H is nothing but Venturi head. Okay, so substituting the value of Venturi head in above equation, we will have H equals to V2 square by 2g minus V1 square by 2g. Okay, so ये 2g को हम कॉमन लेके राइट साइड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Okay, और इसको अभी के लिए एक इक्वेशन बोल दो. Okay, don't put its value. Okay, so let's say this is equation number and equation number A. Okay, so Venturi head equals to V2 square minus V1 square upon 2g. After that, we know we will apply the continuity equation. Now what is continuity equation? Continuity equation says this is our inlet, this is converging zone and this is our throat. ओके, यहाँ पे सेक्शन 1 है, यहाँ पे सेक्शन 2 है. तो हमारा कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है, मास फ्लो रेट एट 1. ओके, इट शुड बी इक्वल्स टू मास फ्लो रेट एट 2. ओके, ये हमने ऑलरेडी काइनेमेटिक्स में देखा था. ओके, सो दैट मीन्स रो 1 A1 V1, okay, they should be equals to rho 2 A2 V2. Okay, now it is a compressible fluid. Incompressible fluid में क्या होती है, डेंसिटी कांस्टेंट होती है. Okay, so rho 1 equals to rho 2. So rho 1 rho 2 cancels. So simply by continuity equation we will have A1 V1 equals to A2 V2. Okay, so we will convert V1 in terms of V2. Okay, so V1 equals to A2 V2 by A1. V1 equals to A2 V2 by V1 A1. So ये V1 का value we will put in above equation. Okay, so finally we will have V2 square by 2g. Okay, V2 square by 2g, V1 square by 2g को हम V2 square by 2g. Okay, 1 minute. What we are doing, ये 2g को हम इधर multiply कर दें. So we will have V2 square minus V1 square is equal to 2gh. ओके, हमने क्या किया है, ये 2g को इधर मल्टीप्लाई किया तो 2gh हो गया. सो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh. अभी हम यहाँ पे we will put the value of V1. Okay, so we will have V2 square minus
V1 का वैल्यू पुट किया, V1 का वैल्यू क्या है A2 V2 by A1, ओके, तो उसका स्क्वायर करेंगे, सो इट इज A2 स्क्वायर इंटू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर, ओके, सो दिस इक्वल्स टू 2GH, राइट साइड में 2GH एज इट इज। अब यहाँ से V2 स्क्वायर कॉमन लेंगे, विल टेक V2 स्क्वायर कॉमन, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर बाय A1 स्क्वायर, okay, this equals to 2GH as it is, right side। अब ये A1 को हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, सो डिवाइड बाय A1 स्क्वायर करेंगे, सो वी विल हैव V2 स्क्वायर इन ब्रैकेट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर divided by A1 स्क्वायर, this equals to 2GH, ओके। अभी हम क्या करेंगे, ये टर्म को राइट साइड ले जाएंगे, तो ये A1 स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई होगा और A1 माइनस A2 स्क्वायर डिवाइड होगा, ओके, सो फाइनली यू विल हैव V2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH, यहाँ पे A1 स्क्वायर आएगा, ओके, ये A1 स्क्वायर जो था ये मल्टीप्लाई हो गया, सो 2GH A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ओके, अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ V2, V2 स्क्वायर। नाउ हमें V2 का वैल्यू चाहिए, सो वी विल डिवाइड, टेक द स्क्वायर रूट टू बोथ साइड, ओके, सो V2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, V2 का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2GH इंटू A1 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ओके। अभी हम ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे, सो A1 स्क्वायर को हम ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे, सो इट इज अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर, सो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, सो वी विल हैव सिंपली A1, so A1 upon under root of A1 square minus A2 square into under root of 2GH, okay। now ये तो हमारे V2 की वैल्यू होगी, वेलोसिटी एट पॉइंट 2 एट थ्रोट। नाउ डिस्चार्ज इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी, ओके, तो डिस्चार्ज इक्वल्स टू A2 इंटू V2, तो यहाँ पे V2 का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ओके, सो V2 का वैल्यू रहेगा A2 इंटू A1 अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2GH, ओके, so finally A1 A2 को साथ में ले लो, so Q equals to A1 A2 upon under root of A1 square minus A2 square into under root of 2GH, okay। now so this is the formula for calculating the discharge, okay, this is the formula for calculating the discharge। अभी जब आप वेंचुरी यूज करते हो, जब आप वेंचुरी यूज करते हो, तो बेसिकली एरिया ऑफ द पाइप A1, ये आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी, या आप जब यूज करते हो तो आपको ये पता ही होता है, या नहीं भी पता है तो आप मेजर कर सकते हो, ओके, सो A1 आप मेजर करोगे और जब वाटर फ्लो होगा तो A1 का वैल्यू हरदम कांस्टेंट रहेगा, ओके। A2 इज अगेन एरिया ऑफ थ्रोट, ओके, सो एरिया ऑफ थ्रोट भी आप मेजर कर सकते हो, या फिर गिवन वेंचुरी मीटर के लिए आपको ये स्पेसिफिकेशन में दिया ही होता है, ओके, सो A2 इज ऑल्सो गिवन टू अस, एंड जब वाटर फ्लो होता है तो A2 इज ऑल्सो कांस्टेंट, ऐसा नहीं होगा कि वाटर का स्पीड बढ़ा दिया तो थ्रोट का एरिया बढ़ जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा, ओके। एक बार आपका वेंचुरीमीटर मैन्युफैक्चर हो गया तो A1 और A2 का वैल्यू हरदम कांस्टेंट रहेगा, ओके। उसके बाद में √2G, ओके, सो G का वैल्यू 9.81 है, सो √2G इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो आपको सिर्फ मेजर क्या करना है, H, ओके, सो H को बोलते हैं वेंचुरी हेड, ओके, और ये H का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आपको दो पीजोमीटर दिए रहेंगे, पीजोमीटर का इनलेट और थ्रोट का रीडिंग मेजर करना है और उन दोनों का डिफरेंस लेना है, तो दोनों का डिफरेंस जो रहेगा दैट इज नथिंग बट वेंचुरी हेड, और वेंचुरी हेड का वैल्यू आपको फॉर्मूले में पुट करना है, ओके, सो Q इज नथिंग बट A1 A2 √2G अपॉन अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इनटू √2GH, ओके, so this is a formula for calculating the discharge, and this discharge is called as theoretical discharge, okay, ये जो डिस्चार्ज हम कैलकुलेट किया है यूजिंग द फॉर्मूला, दिस डिस्चार्ज इज कॉल्ड एज थेरोटिकल डिस्चार्ज, ओके। नाउ एक्चुअली व्हाट हैपेंस, हमने यहाँ पे जो बर्नौलीज थ्योरम अप्लाई किया है, सो बर्नौलीज थ्योरम में हमने सब एक्चुअल आइडियल कंडीशंस लिए है, हमने ये जो इक्वेशन है इसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो लिया है, विस्कोसिटी का कहीं इफेक्ट नहीं लिया है, ओके, सो
So because of this discharge is somewhat more than what actual flow is flowing. Okay, so this above value is called as theoretical discharge. और जो आपका actual discharge रहेगा, it will be less than theoretical discharge. Okay, so basically actual discharge और theoretical discharge अलग अलग है. Okay, so there is one factor that is called as coefficient of discharge. Okay, उसका definition आ जाता है because actual discharge and theoretical discharge are different. So this coefficient of discharge denoted by CD, it is the ratio of actual discharge to theoretical discharge. Okay, actual discharge upon theoretical discharge, इन दोनों का आपने रेशियो लिया तो इसको हम बोलते हैं coefficient of discharge. So what is the definition of coefficient of discharge? It is a ratio of actual discharge upon theoretical discharge. Okay, so we can say actual discharge Q actual is nothing but CD multiplied by Q theoretical. Okay, CD multiplied by Q theoretical. Theoretical discharge को हमने CD से multiply किया तो हमें actual discharge मिल जाएंगे. Okay, so actual discharge is nothing but CD into theoretical discharge और theoretical discharge का value put कर देंगे. तो CD A1 A2 upon under root of A1 square minus A2 square into under root of 2GH. Okay, again ये जो CD का value होता है, okay, ये CD का वैल्यू हर इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट करके निकाल के रखा है. ओके, सो इन केस ऑफ वेंचुरीमीटर CD का वैल्यू जो होता है इट इज 0.98. इट वेरीज बिटवीन 0.96 टू 0.99, इसके बीच में वेरी होता है. ओके, एंड जो जनरल वैल्यू लिया जाता है जनरली इट इज टेकन एज 0.98. Okay, so the value of CD for वेंचुरीमीटर it is 0.98. Okay, so 0.98 मतलब actual discharge is 98% of theoretical discharge. Okay, that means आपका जो वेंचुरीमीटर होता है उसमें सिर्फ 2% लॉसेस होते हैं. जो भी मेजर लॉस माइनर लॉस हो रहा है सब मिला के ओनली 2% ऑफ लॉसेस आर टेकिंग प्लेस. ओके, 98% इसका एक्यूरेसी है, you can say. Okay, so coefficient of discharge, it is one of the factor which also give us how much losses in terms of percentage that are taking place. Okay, so Q actual is CD into Q theoretical. Okay, where CD is nothing but coefficient of vencurimeter and its value is taken, its value is generally less than 1. Why less than 1? Because actual discharge theoretical discharge से ज्यादा हो ही नहीं सकता. Okay, theoretical discharge में कुछ losses रहेंगे और वो losses के कारण actual discharge is always less than theoretical discharge. Therefore, the value of CD is always less than 1. Okay. So remember the formula. Q actual is CD under root of A1 A2 upon under root of A1 square minus A2 square into under root of 2GH. Okay. Here CD coefficient of discharge का वैल्यू लेस देन 1 रहेगा और जनरली फॉर वेंचुरीमीटर टेकन एज 0.98. A1 whatever the diameter or area cross section area at inlet. A2 whatever the cross section area at throat into under root of 2G, this is always constant, into root H. और ये H कैसे निकालेंगे आप? आपको जो वेंचुरीमीटर दिया है वेंचुरीमीटर के इनलेट पे और थ्रोट पे पीजोमीटर्स अटैच होते हैं, तो आपको यहाँ पे प्रेशर हेड मेजर करना है P1/ρg और P2/ρg. सेंटीमीटर में स्केल से आपको डायरेक्टली मेजर करना है और उन दोनों का डिफरेंस करना है. ओके, रिमेंबर वेंचुरीमीटर ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है बिकॉज आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे. ओके, कोई भी इंडस्ट्री में जाओगे या फिर कोई भी पाइपिंग सिस्टम में जाओगे. ओके, इवन आप आपके घर पे जो पानी आता है, ओके, या फिर आपकी जो डैम से पानी छोड़ा जाता है, ओके, जो पंपिंग स्टेशन में पानी छोड़ा जाता है डैम से, तो बेसिकली क्या होता है, बड़े बड़े पंप होते हैं जो डैम से पानी लेते हैं और पंपिंग स्टेशन जहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है पानी का वहाँ बेचते हैं. तो वो कैसे मेजर करते हैं कितना पानी हम छोड़ रहे हैं? वो बेसिकली डिस्चार्ज निकालते हैं. ओके, वहाँ पे बड़े बड़े पाइप पे आपको वेंचुरीमीटर दिखेंगे. वो वेंचुरीमीटर पे यूट्यूब मैनोमीटर या फिर डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर होते हैं, उससे वो डायरेक्टली मेजर करते हैं कितना हम वेंचुरी हेड है और ये फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. ओके,
अभी तो एक्चुअली डिजिटल डिवाइस आ गए, सो डिजिटल डिवाइसेस जो होते हैं आपके, जो डिजिटल डिस्प्ले होते हैं उसमें A1 A2 का वैल्यू ऑलरेडी कोडिंग के थ्रू फिट होता है। ओके, CD का वैल्यू फिट होता है। तो जब आपको HV का वैल्यू वहां पुट करना है, HV का वैल्यू आपने पुट किया कि डायरेक्टली आपको कितना आपने पानी छोड़ा है वो आपको पता चल जाता है। ओके, आपको डिस्चार्ज पता है, फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड इतना वाटर फ्लो हो रहा है, और ये आपने सपोज 30 मिनट्स के लिए छोड़ा है। ओके, आपने आधी घंटे के लिए पानी छोड़ा है और वो पाइप में कितना फ्लो हो रहा है, 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। सो 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज यहाँ पे सेकेंड है। सो 2 इंटू 30 इंटू 60। ओके, इतना मीटर क्यूब ऑफ वाटर आपने छोड़ा है। इसको आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दोगे तो आपने कितना लीटर पानी छोड़ा है ये आप इजीली पता कर सकते हैं। ओके, these are very simple calculations. After that, the value of Venturi head. Okay, so the value of H. H को अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। देर आर टू मेथड्स, या तो आप सिंपली पीजोमीटर्स यूज कर लो। ओके, ये आपका वेंचुरी है। ओके, ये थ्रोट है। तो सिंपली P1/ρg माइनस P2/ρg। ओके, ये सिंपली आप यूज कर लो। ओके, या फिर दूसरा मेथड है कि आप डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर यूज कर सकते हो। ओके, सो यू कैन सी हियर अ डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर इज यूज्ड। ऑलरेडी हमने सेकेंड यूनिट में देखा है डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है। इट इज अ मैनोमीटर which is connected to 2 point where pressure measurement is to be done. Okay, ये 2 पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, इनलेट और थ्रोट पे। और ये जो H दिखा रहा है ये इनलेट का प्रेशर भी नहीं है और थ्रोट का प्रेशर भी नहीं है। इट इज अ डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनलेट एंड थ्रोट। ओके, आपके डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर क्या करते हैं, आपको डिफरेंस ऑफ प्रेशर देते हैं। ओके, जब आप डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर यूज कर रहे हो तो बेसिकली देर आर टू केस। ओके, इन केस वन आपका जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इट इज हेवियर देन फ्लोइंग फ्लूइड। जैसे सपोज वाटर है और यहाँ पे मर्क्यूरी यूज किया है, तो मर्क्यूरी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 है, वाटर का 1 है, सो मर्क्यूरी विल बी हेवियर देन वाटर। ओके, और केस 2 हो सकता है कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर आपने यूज किया है उसमें जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है इट इज लाइटर देन वाटर। जैसे आपने यहाँ पे वाटर यूज किया है और यहाँ पे आपने ऑयल यूज किया है और इथेनॉल यूज किया है फॉर एग्जांपल, जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। ओके, so 0.8 is less than 1, which is specific gravity of water. So basically ethanol will be lighter fluid. Okay, so heavier fluid की केस में हम बोलेंगे let SH is the specific gravity of heavier fluid, SO is the specific gravity of flowing fluid. Okay, and X is the difference of level. यहाँ पे जो आपको दिख रहा है वो सपोज X है या फिर H है। ओके, so आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है या X जो है, X वो आपको मैनोमेट्रिक फ्लूइड का जो कॉलम दिख रहा है। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये कॉलम ऑफ मैनोमेट्रिक फ्लूइड है। ओके, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का आप डिफरेंस देख रहे हो और इसको आपको कन्वर्ट करना है फ्लोइंग फ्लूइड में। ओके, तो फ्लोइंग फ्लूइड में इसका कन्वर्जन H होगा। ओके, आपको ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 2 में डिस्कस किया है ना कि सपोज आपका वाटर फ्लो हो रहा है। ओके, और यहाँ पे आपने पीजोमीटर कनेक्ट किया और प्रेशर P1 है। उसी जगह पे आपने सपोज मर्क्यूरी यूज किया, तो मर्क्यूरी के केस में आपको यहाँ पे H1 रहेगा, यहाँ पे H2 रहेगा, और H1 और H2 के बीच में आप कन्वर्जन कैसे करते हो, मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, सो ऑलरेडी ये सब हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 में देख रखा है। अगेन मैंने बोला है कि फ्लूइड मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पिछला जो भी सीख रहे हो ओके वो आपको आगे हरदम काम आते रहेगा। ओके, सो रिमेंबर जो भी हमने यूनिट नंबर 1, जिसको यूनिट नंबर 1 नहीं समझा है उसको, जिसको यूनिट नंबर 2 के प्रेशर मेजरिंग डिवाइसेस नहीं समझे उसको यूनिट नंबर 4 कुछ नहीं समझेगा, 5 कुछ नहीं समझेगा, 6 कुछ नहीं समझेगा। ओके, तो फ्लूइड मैकेनिक्स की सारी यूनिट इंटरकनेक्टेड है। आपको प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड समझा है तो ये सब समझेंगे आगे, क्योंकि आगे जो जहाँ भी है प्रॉपर्टीज में हम बात करेंगे। ओके, आपको प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समझे है तो यहाँ पे एक्चुअली आपको वेंचुरीमीटर समझेंगे और आगे बहुत से टॉपिक आएंगे जहाँ पे प्रेशर मेजरमेंट हम करते हैं। ओके, आपको कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन समझा है
तो बेसिकली आपको यूनिट नंबर 4 के प्रॉब्लम जमेंगे, बिकॉज प्रॉब्लम नंबर 4 में, यूनिट नंबर 4 में अज्यूम किया जाता है कि यूनिट नंबर 3 में कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हुआ है, हम यहाँ डायरेक्टली वापरते हैं। ओके, और आपको फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं समझा तो आपको आगे हीट ट्रांसफर में प्रॉब्लम जाएगा, बिकॉज हीट ट्रांसफर के प्रॉब्लम में सब कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन वगैरह वगैरह लगने वाला है। आगे टर्बो मशीन नहीं समझेंगे, बिकॉज टर्बो मशीन पूरा की पूरा फ्लूइड के ऊपर ही है। ओके, और फाइनल ईयर के कुछ सब्जेक्ट है HVAC RAC। ओके, बिकॉज आपको ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर में बताया कि सेकेंड ईयर में फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और सॉम, ये 3 बेसिक सब्जेक्ट है। अब ये बेसिक सब्जेक्ट समझे तो पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग समझ गया, और इनमें से कुछ कोई टॉपिक नहीं समझा तो आगे आपको टॉपिक से रिलेटेड 20 टॉपिक आने वाले हैं, वो नहीं समझेंगे। ओके, तो रिमेंबर यूनिट नंबर 1 एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, सो यहाँ पे ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 2 में भी देखा था। सो जब हेवियर फ्लूइड होता है तो फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू एक्स इंटू एस हेवियर फ्लूइड अपॉन एस ऑफ लाइटर फ्लूइड -1। आई थिंक हमने प्रैक्टिकल में भी ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। प्रेशर मेजरमेंट का फॉर्मूला हमने यूज किया था, वहाँ पे लाइटर फ्लूइड था। तो लाइटर फ्लूइड के केस में रहता है H वाटर इक्वल्स टू H ऑयल इंटू 1 माइनस एस ऑयल अपॉन एस वाटर, ये आपने यूज किया था। ओके, तो जब हेवियर फ्लूइड रहता है तो एस हेवियर फ्लूइड अपॉन एस गिवन फ्लूइड -1 होता है, और जब लाइटर फ्लूइड रहता है तो, बट इट इज नॉट केस दैट हर केस में पाइप जो है वो हॉरिजॉन्टली फ्लो होगा या हॉरिजॉन्टली इंक्लाइन होगा। ओके, आप इंक्लाइन पाइप में भी वेंचुरीमीटर इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आप वेंचुरीमीटर इंस्टॉल कर सकते हो, और विद दिस वेंचुरीमीटर यू कैन डू द प्रेशर मेजरमेंट। ओके, बट इस केस में क्या होता है, हमने डेरिवेशन में हॉरिजॉन्टल केस में Z1 और Z2 कैंसिल कर दिया था। ओके, यहाँ पे Z1 Z2 कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज यहाँ से सपोज डेटम से इनलेट Z1 है। ओके, एंड सपोज थ्रोट का जो लेंथ है सेंटर लाइन से डिस्टेंस वो Z2 है। Z1 Z2 इस केस में कांस्टेंट नहीं रहेंगे। ओके, एंड बेसिकली इंक्लाइन के केस में नॉर्मली डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर यूज किया जाता है, या फिर मोस्ट ऑफ द जितने भी आपके वेंचुरीमीटर होते हैं उसमें डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर ही यूज किया जाता है वेंचुरीमीटर के साथ। ओके, तो हम डायरेक्टली डिफरेंशियल वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला देख लेंगे। ओके, और यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि जो हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है वो हेवियर फ्लूइड है। ओके, सो कंसिडर दिस इज H1। ओके, एंड ये डिस्टेंस H2 है, H1 माइनस H2 आप करोगे। ओके, मतलब आप स्केल पे रीडिंग देखोगे, H1 का रीडिंग, H2 का रीडिंग, और H1 माइनस H2 करोगे तो आपको H मिलेगा। सो H क्या रहेगा, H विल बी वॉट एवर द प्रेशर हेड इन हेवियर फ्लूइड। ओके, तो उसको आप कन्वर्ट करोगे, सॉरी X, यहाँ पे X मिलेगा, फिर ये X को आप कन्वर्ट करोगे H में यूजिंग फॉर्मूला X इंटू H स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर फ्लूइड माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गिवन फ्लूइड -1। ओके, ओके, आफ्टर दैट सी यहाँ पे जो ये जो H रहेगा दैट विल बी, ओके, ना हमारा बर्नौलीज थ्योरम क्या था, इनलेट पे Z1 प्लस P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G। ओके, so this equals to Z2 plus P2 by rho G, 1 minute I am writing, plus V2 square by 2G। ओके, अभी यहाँ पे आपको ये टर्म को साथ में लेना है, डेटम हेड और प्रेशर हेड को। ओके, और इस टर्म को सॉरी इस टर्म को राइट में ट्रांसफर करना है और इस टर्म को लेफ्ट में ट्रांसफर करना है। तो ऑलरेडी हमने डेरिवेशन में देखा था, हमारा H क्या था, H था V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। ओके, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन 2G, ये था ना हमारा वेंचुरी हेड। सो इसको हम राइट में ले जाएंगे, तो ये H इज ऑल्सो इक्वल्स टू P1 बाय रो G प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो G प्लस Z2। ओके, सो इस केस में हमारा जो प्रेशर हेड होता है, वेंचुरी हेड होता है, वो P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी नहीं होता है, P1 बाय रो जी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रो जी प्लस Z2 होता है, और ये हम डायरेक्टली डिफरेंशियल मैनोमीटर से मेजर कर लेते हैं। ओके, तो इतना डिफरेंस आपको याद रखना है। ओके, और जब आप लाइटर फ्लूइड यूज कर रहे हो
तो लाइटर फ्लूइड में P1 by ρg plus Z1 minus P2 by ρg plus Z2, that means Venturi head. This is nothing but x into, यहाँ पे 1 माइनस करना है, 1 माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हेवियर फ्लूइड. So I think we'll stop today, and from next lecture we will see the problems on Venturi meter, और उसके बाद में हम orifice meter देखेंगे.